see a difference between Java Beans and EJB and move towards the concept of the EJB a little bit further. With this slide, I will able to revise the past as well. So, what is the property of beans? Can be visible or non-visible? What is the property of EJB? EJB are non-visible remote objects. Very important to understand. It is one of the, you can say that one of the server part only. It tended to be local to a single process on the client side. Client side पे अगर वो single process है तो local हो जाता है. यहाँ पे क्या होता है? Remotely executable component deploy on the server. Okay. ये रिमोट में काम करते हैं, जैसे मैंने कहा ना, RMI इंटरफेस के अपडेटेड वर्जन में सब है. Uses the bean info classes, property editor and customizers to describe itself. Uses the deployment descriptor to describe itself. तो यहाँ पे जो मामला है वो डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर से पता चलता है और यहाँ पे बीन इन्फो क्लास से पता चलता है. ये हमारे टूल में होता है बीन इन्फो क्लास, वहां से पता चल जाता है. ओके. फिर जो है इधर है इधर जो है भाई साहब आप देखो कैन ऑल्सो बी डिप्लॉयड एज एन ActiveX कंट्रोल. अब ये ActiveX जो है विंडो का एक जो ActiveX कंट्रोल है, ये विंडो का प्रोडक्ट है, तो वहां भी ये डिप्लॉयड है. तो ये ActiveX कंट्रोल के साथ नहीं होता है, ये J2EE एनवायरनमेंट को चाहिए होता है मैनेज करना. ठीक है. ठीक है. तो अब आगे बढ़ते हैं. अब एक बेसिक EJB जो होता है, अभी तो थोड़ा एडवांस EJB हो गया है. ठीक है. So, अब आप देखिए, आप कोई भी क्लाइंट से जब कोई भी रिक्वेस्ट पाते हैं तो क्या काम होता है? एंड ऑफ द डे वो सर्वर पे जाता है. अभी हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं EJB सर्वर पे. EJB सर्वर के अंदर कंटेनर्स होते हैं. कंटेनर में होते हैं इंटरफेसेस. अब उसको नाम दे दीजिए आप. यहाँ पे इन्होंने दिया है होम इंटरफेस, यहाँ पे दिया है रिमोट इंटरफेस. अब होम इंटरफेस के थ्रू एक होम ऑब्जेक्ट निकलता है, रिमोट इंटरफेस के थ्रू अलग तरीके का EJB ऑब्जेक्ट निकलता है, जो EJB की अंदर रखी हुई टेक्नोलॉजी है, जो JNDI, जावा ट्रांजेक्शन सर्विस, JTS, सिक्योरिटी और मैसेजिंग पे बेस्ड होती है. ये उसको अंडरस्टैंड करती है, फिर उसके अंदर उसको राइट लोकेशन शेयर करती है या उसको एनहांस करती है, उसका बिजनेस लॉजिक प्रोवाइड करती है और फिर इसको डेटाबेस में आगे बढ़ाती है. अच्छा, अब यहाँ पे ये समझने वाला है व्हाट डज EJB कंसिस्ट. एंटरप्राइज जावा बीन्स के अंदर होता क्या है? तो एक टिपिकल EJB के अंदर होता है EJB सर्वर. EJB container that runs on these servers. EJB container that runs on these servers. EJB that run in these containers. Very important. EJB server हो गया. फिर ये रहा EJB server, उसके अंदर EJB container. EJB that run in these containers. EJB clients and their auxiliary systems like JNDI, JTS, EJB home interface, EJB home object, EJB remote interface है, EJB object. तो एक थोड़ा सा वर्किंग स्ट्रक्चर समझने का है कि क्लाइंट जो है EJB के अंदर के कंटेनर को इन्वोक करता है, कंटेनर मेथड्स को. EJB फिर इन्वोक होता है कंटेनर के अंदर रखा हुआ, फिर वो इन्वोक होता है, फाइनली EJB का जो वर्क डन है वो कंप्लीट होता है. अब देखिए, व्हाट आर द EJB कंपोनेंट्स.
ईजेबी के जो कंपोनेंट्स है, ईजेबी सर्वर, ईजेबी क्लाइंट, ईजेबी कंटेनर। तो सर्वर क्या है? ये एक तरीके से जो कोरवा सर्वर पहले यूज होता था, कोरवा कॉमन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर आर्किटेक्चर यूज होता था, उसी का एक एनालॉगस है। Provide the system service like raw execution environment, multi-processing, load balancing, divide access and all. Okay. Raw execution environment, J2EE, multi-processing, you understand in your OS concept. Load balancing. Load balancing is the very important concept initially when the server was divided into, because it was something many hits were coming on for the particular websites, how to balance that load and how to share that load. So it was the concept. And then here it was a device access. Okay. How to access those devices. Now, provides naming transaction services. How naming transaction services is to be done. Then makes container visible. एक container को visible कैसे बनाता है? Okay. Then what are the EJB clients? EJB means for the information. Find the EJB container that contains the bean through Java naming directory. Use the EJB container to invoke EJB bean method. Okay. Act as the interface between enterprise Java beans and the outside world. Okay. EJB client never access a bean directly. Okay. EJB client never access a bean directly because first of all it will connect with the container, then within the container EJB method will be invoked. EJB home interface क्या होता है जी? EJB होम मेथड के अंदर होता है फैक्ट्री मेथड जो हमने डिस्कस किया था, फॉर लोकेटिंग, क्रिएटिंग, रिमूविंग इंस्टेंसेस ऑफ EJB क्लास एंड defining it. The home object is the implementation of the home interface. Okay. Home object should be the implementation of the home interface. Okay. The remote interface, the EJB object. Okay. Remote interface or the EJB object. What is that? It is a business method. You know, we have divided in the EJB concept. We have differentiated the presentation and the business layer. Okay, this is what it is. List the business methods available for the enterprise view. The EJB object is the client view of the enterprise view. It implements the remote interface. Okay, it implements the remote interface. Now, the enterprise Java bean, the real EJB bean itself is the content within the EJB container and should never be directly accessed other than the content. EJB कंटेनर दो तरीके के बीन्स पे जो आपको फोकस करना था कि एक सेशन बीन और एंटिटी बीन। तो EJB कंटेनर सेशन बीन और एंटिटी बीन में कैसे मैनेज होता है? सी, चाहे वो कोरबा आर्किटेक्चर हो, चाहे वो सर्वलेट EJB क्लाइंट हो, चाहे EJB क्लाइंट एप्लीकेशन हो, वो क्या होता है? रिक्वेस्ट करता है होम इंटरफेस के लिए। okay? या रिक्वेस्ट करता है रिमोट इंटरफेस और EJB ऑब्जेक्ट के लिए। ये जाता है एंटिटी EJB के पास, एंटिटी EJB इसको मैनेज करती है। ऐसे ही एप्लेट्स जो होते हैं, तो कोरबा सेशन EJB क्लाइंट एप्लीकेशन डायरेक्ट गवर्न होते हैं एंटिटी जावा बेस, लेकिन जो एप्लेट है, जो वेब ब्राउजर पे थीम क्लाइंट है, वो जाता है सेशन बीन में। ओके, ये सेशन बीन के थ्रू एक दूसरे से मैनेज होता है। अब समझ लिया आपने कि एंटिटी जो है बिजनेस लॉजिक को मैनेज करता है और एप्लेट से डायरेक्ट सेशन बीन लेता है।
तो एंटरप्राइज जावा, एंटरप्राइज बीन के कितने टाइप होते हैं? होता है सेशन, ये क्लाइंट से डायरेक्ट टास्क लेता है, उसको कंप्लीट करता है। जैसे एपलेट से टास्क लिया और कंप्लीट किया। एंटिटी रिप्रेजेंट्स बिजनेस एंटिटी ऑब्जेक्ट दैट एग्जिस्ट इन द पर्सिस्टेंट स्टोरेज। ये जो है पर्सिस्टेंट स्टोरेज में तीनों चीज मौजूद होती है और उनसे लेते हैं और फिर एंटिटी भी उसके लिए स्पेशली डिफाइंड है, उसको मैनेज करते हैं। एक होता है मैसेज तो act as a listener for the Java messaging service, API processing service या synchronous। जो ये जो बेस है यहाँ पे एंटरप्राइज, जो ऑक्सिलरी एप्लीकेशंस जिसको कहते हैं, JNDI, TS, सिक्योरिटी मैसेजिंग, जब इनको एक्टिवेट करते हैं तो हमको इस बीन की जरूरत पड़ती है, मैसेज ड्रिवन बीन की। और इस ठीक है, तो इधर समझिए एक जो है एक EJB का इन्वायरमेंट सेशन बीन और एंटिटी बीन की तरह कैसे है। EJB का कोई क्लाइंट है, उसने EJB के होम को कॉल किया तो उसने एंटिटी बीन को कॉल किया। फाइनली इसका एक सर्वर है, जो इस सर्वर के अंदर एक कंटेनर है एंटिटी बीन, ऐसे ही इस सर्वर के अंदर कंटेनर है एक सेशन बीन। ओके, फाइनली ये डेटाबेस से कनेक्ट हो जाता है। दिस इज व्हाट इट इज। तो इसको समझना है कि आप इसको समझिए, एंटरप्राइज जावा बीन्स के अंदर सेशन बीन, एंटिटी बीन जो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में काम आता है, जो आपस में कम्युनिकेटेड हो ही रहे हैं। एक बार रिक्वेस्ट आ गया वो कम्युनिकेशन कंटेनर के अंदर स्टार्ट हो गया। मैसेज ड्रिवन बीन एसिंक्रोनस है, बिकॉज जैसे जैसे JNDI की जरूरत है, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन या मैसेजिंग सर्विसेज की जरूरत है, उस हिसाब से अपने आप को एक्टिवेट करना। और इस एंटिटी बीन को मैनेज करने के लिए हमारे पास बीन मैनेज परसिस्टेंट का कॉन्सेप्ट होता है, कंटेनर मैनेज परसिस्टेंट का कॉन्सेप्ट होता है। क्यों होता है वो हमको यहाँ पे समझ में आता है, ठीक है, कि क्यों होता है। या तो वो बीन मैनेज होगा, या तो ये कंटेनर इसको मैनेज कर रहा है, वो बीन मैनेज परसिस्टेंस, या तो बीन मैनेज परसिस्टेंस होगा या ये कंटेनर मैनेज परसिस्टेंस को मैनेज करेगा। अच्छा, तो एंटिटी बीन है क्या? एंटिटी बीन ऑलवेज हैव द स्टेट्स। एंटिटी बीन जो बिजनेस लॉजिक में हमारी हेल्प करता है, इज ऑलवेज हैव एन स्टेट, कैन बी शेयर्ड बाय मल्टीपल EJB क्लाइंट्स। Their state can be persisted and stored across multiple invocations. Okay, इसका जो state है persistent रहना चाहिए, जैसे भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे जो कॉन्सेप्ट मैनेज परसिस्टेंस होता है। Hence they can survive system shutdowns, क्योंकि वो persistent होता है, क्योंकि उसके अंदर हम काबिलियत डाले हैं कि अगर कोई भी चीज अपडेट हो रहा है तो जब तक डेटाबेस को आप उसको राइट ऑपरेशन नहीं कर देंगे तब तक उसको परसिस्टेंस रखेंगे। इसीलिए अगर सिस्टम शटडाउन भी हो तो वहीं से एक्टिवेट होता है जहाँ से वो अपने आप को रूटीन उसका चेक किया गया था या कहीं रूटीन को पावर ऑफ हो गया था। EJB सर्वर्स हैव अ राइट टू मैनेज देयर वर्किंग सेट। ओके, दो तरीके से करते हैं। पैसिवेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच द स्टेट ऑफ बीइंग इज शेप्ड। State of being is shaped to persistent storage and then it's swapped out. पैसिवेशन मतलब होता है पैसिव स्टेट में चला गया, लाइट गई पैसिव स्टेट में चला गया, कोई दिक्कत। एक्टिवेशन में क्या होता है? Activation is the process by which the state of a bean is restored by swapping it from persistent to storage. ठीक, पैसिवेशन एंड एक्टिवेशन अप्लाई टू बोथ सेशन है एंटिटी बीन। अगर अब बीन है तो ये प्रॉपर्टी तो फॉलो करेंगे ही, क्योंकि आपको ना परसिस्टेंट स्टोरेज रखना है। तो परसिस्टेंट को मैनेज करने के लिए हमारे पास पैसिवेशन का कॉन्सेप्ट होता है और एक्टिवेशन का कॉन्सेप्ट होता है। अब आप आइए, परसिस्टेंस क्या होता है एंटिटी बीन? Persistence is an entity of two types: container managed persistence और bean managed persistence. Container managed persistence में ये होता है कि हम डेटा सोर्स से इंडिपेंडेंट होते हैं। तो the EJB container is responsible for saving the bean state, hence the implementation is independent of the data source. Bean managed में क्या होता है? ये हर बीन अपना स्टेट खुद सेव करता है। Okay. Entity being directly responsible for saving its own state, implementation less adaptable than previous. ठीक है, अब देखिए कैसा होता है जी। कुछ नहीं एग्जिस्ट है तो पूल करेंगे। पूल करने के लिए हमको क्या चाहिए? एंटिटी का कॉन्टेक्स्ट। फिर क्या करेंगे? उसको एक्टिवेट करेंगे तो एंटिटी रेडी हो जाएगा। उसके लिए हमको क्या चाहिए होगा? क्रिएट करना पड़ेगा EJB को। EJB क्रिएट करेंगे, फिर पोस्ट क्रिएट करेंगे। फिर जब मान लो लाइट चली गई तो फिर इसको पैसिव स्टेट में लाने के लिए फिर इसको पूल में डाल देंगे। तो
क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा, रिमूव का, फिर ईजेबी पूल हो जाएगा, फिर कहाँ चले जाएगा, अनसेट एंटिटी कॉन्टेस्ट। तो पहले उसको सेट कर लेंगे, काम हो रहा होगा, रेडी चल रहा है, अगर बीच में काम कहीं लाइट वाइट चली गई तो तुरंत उसको पूल में डाल देंगे, पूल से वो पूल जब वो फिर एक्टिवेट होगा, फिर लाइट आएगी तो पूल से चला जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट स्टेट में अनसेट एंटिटी कॉन्टेस्ट की हेल्प से, और फिर यही साइकिल फॉलो होते हुए चली जाएगी, जिसकी वजह से हम अपने प्रोसेस को मैनेज कर लेते हैं। सेशन बीन क्या होता है जी? As the name suggests, a session bean is similar to the interactive session, जहाँ पे हमको डायरेक्ट क्लाइंट से आप इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। A session bean is not shared like interactive session. A session bean is not persistent. There are two types of session bean: stateful and stateless. Okay. These state types of EJB have no internal state. Since they do not have any state, they need not to be passivated. Okay. या तो भाई ये होगा या तो नहीं होगा, पैसिवेट होने का कोई मतलब नहीं। Because of the fact they are stateless, they can be pooled to service multiple clients. एक साथ जो है आप मैक्सिमम क्लाइंट्स आपको मैनेज कर सकते हैं। ओके अब आप सेट करते हैं सेशन के कॉन्टेक्स्ट को, फिर आपकी ईजेबी क्रिएट होती है, फाइनली आप ईजेबी को रिमूव कर देते हैं। अब आप देखिए स्टेटफुल सेशन में, थोड़ा इसको आराम से पढ़िए, समझिए पिछले बार वाले सर इस बारे में क्या डिफरेंस है। हेलो, आपने इसे पढ़ा? सेशन भी स्टेटलेस और स्टेटफुल। तो स्टेटलेस सेशन बीन क्या होता है? स्टेटलेस में क्या होता है कि भाई वो स्टेटलेस में भाई उनके पास कोई पैसिवेटेड स्टेट नहीं होती है, जैसे उनके वापस चले जाए, डायरेक्ट एक ही साथ एक्टिवेट होते हैं, मल्टीपल क्लाइंट को सेटिस्फाई करते हैं, काम करते हैं। अब स्टेटफुल में क्या होता है, इनके पास एक पैसिवेटेड स्टेट होते हैं और ये पर्सिस्टेंट सेशन बीन होता है। स्टेटलेस में पर्सिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन स्टेटफुल में पर्सिस्टेंट होता है, और एंटिटी बीन पर्सिस्टेंट होती है, ये समझने वाली बात है। इनके अंदर इंटरनल स्टेट होती है और ये एक्टिवेशन और पैसिवेशन दोनों को फॉलो करते हैं। They are also called persistent session beans. These types of EJBs can be saved and restored across the session. To save a call to the bean, get handle method, return handle object, to restore get EJB method. तो वही जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ बीच में एक रेडी स्टेट आ जाएगी और वो पैसिव स्टेट में उसको जब आपस में काम हो रहा होगा, क्रिएट होगा बीन, फिर सेशन स्टार्ट होगा, फिर काम करेगा, तो जब लाइट चली जाएगी तुरंत तो पैसिव स्टेट में चले जाएगा, और जो लाइट आएगी अपने आप को एक्टिवेट कर लेगा, फाइनली फिर जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तभी वो अपने आप को रिमूव करेगा। हाँ, तो ये डिफरेंस है एंटिटी बीन और सेशन बीन में। ओके, डेटा मेंबर इन द सेशन बीन कंटेन्स कन्वर्सेशनल स्टेट, मतलब वो ना क्लाइंट से डायरेक्ट बात कर रहे हैं तो कन्वर्सेशनल स्टेट है। द डेटा मेंबर ऑफ द एंटिटी बीन रिप्रेजेंट एक्चुअल डेटा इन द डोमेन मॉडल। Session bean may handle database access for a single client. Entity beans share database access for the multiple clients. सेशन बीन में क्या होता है, एक डेटा हो गया, सिंगल क्लाइंट के लिए अपने सेशन क्रिएट कर दिया, वो उसने अपना सिस्टम ऑफ कर दिया, सेशन एंड हो गया। एंटिटी बीन क्या है कि भाई वो कंटेनर मैनेज्ड है, तो कंटेनर मैनेज्ड है तो उसको मल्टीपल क्लाइंट एक साथ एक्सेस करना है, जैसे हमने देखा होम इंटरफेस और रिमोट इंटरफेस। Because session beans are about conversation with a single client, session beans are allowed to store full client data information. The relationship between session bean and client is one-on-one. यहाँ पे भाई साहब एक client एक से बात कर रहा है तो one-on-one रहता है. Because the entity beans are shared between multiple clients, they do not store a per client state information. The relationship between entity bean and a row is the domain model to one-to-one. The life of session bean is limited to the life of client. जितने देर client activate रहेगा उतने देर session bean activate रहेगा. Entity bean persists as long as the data exists in the database. Entity bean क्या है? Business logic है. Business logic तो हमेशा persist करेगा. एक बार आपने एक
टेक्नोलॉजी बना दिया कि कैसे कैसे आप कैलकुलेट करेंगे बैंक का इंटरेस्ट, तो बस आप उसमें नंबर इधर उधर करते रहिए, बस इंटरेस्ट कैलकुलेट होता रहे। लेकिन एक क्लाइंट से फोन पे बात कर रहे हैं किसी एआई के थ्रू, तो वो तो सेशन भी सेशन एस्टेब्लिश हुआ, काम कर रहे हैं। सेशन बिंग कैन बी ट्रांजैक्शन अवेयर, ऑब्वियस है। मैं आई हेल्प यू जब बोलेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। एंटिटी भी ना ट्रांजैक्शनल, वापस में बस मैनेज होता है। सेशन बिंग डू नॉट सर्वाइव सर्वर क्रैशेस, एंटिटी बिंग सर्वाइव सर्वर क्रैशेस। क्यों? क्योंकि इसमें पूलिंग होती है, फिर ये पूल कर लेता है, अरे अपने आप को पैसिव स्टेट में लेते आता है। जब पैसिव स्टेट में लेते आता है, लाइट जाती है, फिर अपने आप को रेडी स्टेट में ले आता है, फिर फाइनली वो एक्टिवेशन हो जाती है, वो अपने आप को सर्वाइव कर लेता है। लाइफ साइकिल ऑफ ईजेबी। ईजेबी सर्वर क्या होता है? प्रोवाइड करता है कंटेनर। कंटेनर के अंदर ईजेबी डेवलपर डेवलपर इंटरप्राइज जावा बीन्स को डालता है, फिर ईजेबी में डिप्लॉय होता है। इंटरप्राइज जावा बीन्स डिप्लॉय होता है ईजेबी एप्लीकेशन में, फिर ईजेबी डेवलपर और ईजेबी यूजर के लिए वो अवेलेबल होता है। छोटा सा फिगर। अब रोल्स क्या है ईजेबी साइकिल का? ईजेबी बीन प्रोवाइडर, डेवलपर्स who create enterprises. Application assembler uses the EJB. EJB deployer deploys the EJB on a server. EJB service provider creates EJB server. EJB container provider create EJB containers and tools. System administration क्या करता है? System admin क्या करता है? Ensure server is available to other network services. Is ये क्या करता है? Ensure the servers are configured correctly to handle users load. Okay. ये जो पूरी कहानी थी, ये थी आपकी EJB की. Okay. Now let's move and see our course structure. तो यहाँ पे जो है ना, जो स्ट्रक्चर तो यहाँ पे जो जेबी स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे जो जेबी स्ट्रक्चर है, ये जो है, आप इसको देखिए, हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने पढ़ लिया प्रिपेयरिंग अ क्लास जावा बीन्स, क्रिएटिंग जावा बीन्स, प्रॉपर्टीज, टाइप्स ऑफ बीन, स्टेटफुल सेशन में, स्टेटलेस सेशन में और एंटिटी सेशन। तो हमने जो कॉन्सेप्ट है ईजेपी का, वो आज खत्म कर दिया। अगले सेशन में, अगले वीक के सेशंस में हम जीटीबीसी, सर्वलेट और जेएसपी की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक बार ये समझ में आ जाने से, ये नया कॉन्सेप्ट है, अब बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। जीटीबीसी क्या है, J2EE, ईजेबी एक बार समझ में आ गया, तो जीटीबीसी, सर्वलेट और जेएसपी बहुत सारी उसी में इनबिल्ट टेक्नोलॉजी है। तो J2EE गवर्नमेंट में, तो वो कैसे आपस में कम्युनिकेट करते हैं, वो उनको समझना होता है। फाइनली वो जॉब डन।